اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی بس یہی نہیں کہ نماز میں تم پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر، اور دے اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں، اور صحیح ادا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب بھی وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں، اور جہاد کے وقت یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار بھی ہیں۔ ناظرین، اہل کتاب نے تحویل قبلہ کے خلاف سخت پراپیگنڈا کیا۔ اس سلسلہ میں پہلے بات ہو چکی ہے۔ پارہ نمبر 2 کی پہلی آیات میں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اے حبیب آپ اپنا رخ جو بیت المقدس کی طرف سے پھر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، تو اہل کتاب نے اس پر بہت شور مچایا، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں کیسے مسلمان ہیں کہ کبھی مشرق کی طرف رخ کر لیتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف، کبھی کسی طرف، کبھی کسی طرف۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے مشرق و مغرب، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی رب کو پاؤ گے، اللہ کو پاؤ گے۔ چنانچہ اس سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے کہ آج یہ بیت المقدس سے ہٹ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا گیا ہے۔ اہل کتاب کہتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہی اصل نیکی ہے، اور اگر اس طرف رخ نہ کیا جائے تو کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ان کے مطابق جب مسلمانوں نے قبلہ تبدیل کر لیا تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ اہل کتاب نے قبلہ کو اس قدر اہمیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اہل کتاب کے اس زوم کی تردید فرمائی ہے، اور واضح کیا ہے کہ استقبال قبلہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فروعی مسئلہ ہے جسے اہل کتاب ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تھا ادھر کرتے رہے، اور جب تک اس نے پسند فرمایا تو رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہو گیا۔ اس میں اچنبھے کی کون سی بات ہے؟ ناظرین، ہر دین میں بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور بعض حقیقی مقاصد، کیونکہ ان ظاہری اعمال سے انسان دین کے حقیقی مقاصد تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔
इसलिए इन ज़ाहरी आमाल की बजावरी ज़रूरी होती है। जब तक कौम दीन का दामन मजबूती से थामे रहती है, वो इन ज़ाहरी आमाल और हकीकी मकासद दोनों को पेश नज़र रखती है और दोनों को यकसा अहमियत देती है। लेकिन जब दीन का वलवला सर्द पड़ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता हकीकी मकासद आंखों से ओझल हो जाते हैं और कौम सिर्फ ज़ाहरी अमाल की अदायगी को काफ़ी समझने लगती है और इन ज़ाहरी अमाल में हकीकी मकासद तक पहुंचने का जज्बा दम तोड़ चुका होता है। इसलिए वो अमाल बेजान रसूम होकर रह जाते हैं और गलत अंदेश कौम उन्हीं रसूम की बजा आवरी को ही बड़ी नेकी शुमार करने लगती है और हकीकी मकासद से यकसर गाफिल हो जाती है। मसलन नमाज और रोज़ा इस्लाम की बुनियादी इबादत में से हैं, लेकिन हजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुतल्लिक इरशाद फरमाया कि जो नमाज बदकारी से बाज ना रखे फलम तजिदहु मिनल्लाहि इल्ला बोदन औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम, वो नमाज उसे खुदा से और ज़्यादा दूर कर देगी। रोज़ा से मुतल्लिक इरशाद फरमाया मन लम यदा कौल ज़ूरी वल अमला बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबा। रोज़ेदार अगर झूठ बोलने और इस पर अमल करने से बाज ना आए तो अल्लाह को इसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आया करीमा में जो मैंने आज तलावत की है, इसी हकीकत को खोलकर बयान फरमाया गया है ताकि उम्मत मुसलमान पहली उम्मतों की तरह चंद ज़ाहरी आमाल पर ही काने ना हो जाए और नेकी और अताअत को उन्हीं में मुनहसर ना समझ बैठे। साहिब तफसीर मजहरी जनाब सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि लैसल बिर्रा का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मुकर्ररा सिमत की तरफ मुंह करना नेकी और ताअत है ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि नेकी सिर्फ इसी में मुनहसर नहीं, ये भी नेकी है और इसके अलावा और भी नेकी और अताअत के काम हैं जो हकीकी मकासद हैं और तुम्हारी तवज्जो के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। नाज़रीन, साहब का गलत फहमी को दूर करने के बाद बड़ी वजाहत और ख़ास तरतीब के साथ इस्लाम के जुमला हकीकी मकासद बयान फरमा दिए गए हैं। इस्लाम की सारी तालीम इन 4 उन्वानों के नीचे दर्ज की जा सकती है। वो उन्वान मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहला मकसद अकायद इस्लामिया है। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वन नबिय्यीन, जो शख्स ईमान लाए अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर और फरिश्तों पर और किताब पर और सब नबियों पर। यानी पहला मकसद ये है कि किसी भी शख्स का अल्लाह ताला, यौम आखिरत, फरिश्तों, किताब और तमाम नबियों पर ईमान कामिल हो। अल्लाह ताला पर ईमान का मतलब यह है कि उसकी ज़ात और सिफ़ात को माना जाए। उसकी सिफ़ात का इनकार भी उसी तरह कुफ्र है जिस तरह उसकी ज़ात का इनकार दहरियत है। मसलन मुक़द्दर करना अल्लाह ताला की सिफ़त है, लिहाजा तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है। इसके बगैर इंसान मोमिन नहीं हो सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर अल्लाह ताला की राह में सोना खर्च करता है मगर तकदीर पर ईमान नहीं लाता तो उसकी इतनी बड़ी खैरात भी कबूल नहीं होगी। ईमान बिल्लाह के बाद ईमान बिल आखिरत है, यानी क़यामत के दिन पर ईमान लाना। इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईमान बिल आखिरत में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है या जिन्हें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। मौत के बाद दोबारा जी उठना,
हिसाब किताब का मुनक़द होना, नेकी बदी का इम्तियाज, पुल सरात से गुजरना, दोज़ख, जन्नत वगैरह, ये सब चीज़ें ईमान बिल आखिरत में दाखिल हैं। लिहाजा नेकी उस शख्स की है जो इन सब चीज़ों पर ईमान रखता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है, यानी ये यकीन रखना कि मलाइका अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, जिसे अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान और इस कायनात की तख्लीक से लाखों साल पहले पैदा फरमाया, और ये भी नौ इंसानी की मसलहत की खातिर एहतमाम फरमाया। नाज़रीन, ईमान के चौथे जुज़ के तौर पर अल्लाह ताला की नाज़िल करदा किताब पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। यहाँ किताब से मुराद जिन्स किताब है, और मतलब यह होगा कि अल्लाह ताला ने जितनी भी किताबें नाज़िल फरमाई हैं सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। और इसके बाद कुतुब समाविया की आखिरी किताब कुरान हकीम पर तफसीली ईमान लाना भी ज़रूरी है। पहली किताबों पर ईमान लाना तो ज़रूरी है, लेकिन उन पर अमल करना ज़रूरी नहीं, जबकि अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद पर ईमान लाना भी ज़रूरी है और इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। और ईमान का 5वां दर्जा अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाना है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी और रसूल मबूस हुए हैं सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। ईमान के इन पांचों दर्जात का ज़बान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना लाजिम है, इसके बगैर किसी भी नेकी का तसव्वुर महाल है। और दूसरा मकसद मामलात हैं। मामलात के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब, और दे अपना माल अल्लाह की मोहब्बत से रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों और मांगने वालों को, और खर्च करे गुलाम आज़ाद करने में। यानी कोई शख्स माल के साथ मोहब्बत करने के बावजूद उसे खर्च करे, इंसान की माल के साथ मोहब्बत एक फितरी अमर है। पारा नंबर 30 सूरतुल आदियात आयत नंबर 8 में इरशाद है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बिलाशुबा वो माल की मोहब्बत में बड़ा ही सख्त है। यही मोहब्बत जो उसे माल से है, अगर इंसान इस मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान कर दे और उसके बंदों पर खर्च करे तो ये बहुत बड़ी नेकी है। यहाँ अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि अपना माल किन लोगों पर खर्च करना चाहिए। सबसे पहले ज़विल कुर्बा, कराबतदारों पर, यानी अपने सगे रिश्तेदारों में अगर कोई मुस्तहिक है तो उस पर खर्च करो। अकरबा पर खर्च करने का दोहरा अजर है, एक सिला रहमी का और दूसरा सदके का। खर्च करने की दूसरी मद है वल यतामा वल मसाकिन, यतीमों और मस्कीनों यानी यतीमों और मसाकिन की हाजत बरारी भी नेकी है। बच्चा नाबालगी की हालत में हो और बाप फौत हो गया हो तो उसे यतीम कहते हैं। ऐसे यतीम की सरपरस्ती ज़रूरी है, इस पर माल खर्च करना चाहिए। और मिस्कीन वो है जो मेहनत मजदूरी करता है मगर कोशिश के बावजूद इसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, वो भी मुस्तहिक है। ऐसे शख्स की माली एआनत यकीनन नेकी का काम है। माल खर्च करने का तीसरा दर्जा है वब्न सबील, और मुसाफिरों पर, यानी मुसाफिर भी इमदाद के मुस्तहिक हैं जो दौरान सफ़र मोहताज हो जाएं, ज़्यादा राह ख़त्म हो जाए या चोरी हो जाए या फिर वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो गया हो तो ऐसे शख्स पर खर्च करना भी नेकी है। इससे अगला दर्जा है वस्साइलीन, सवाल करने वाले पर। सवाल वही करता है जो मोहताज हो। साइल के लफ्ज़ी मानी मांगने वाले के हैं। यहाँ पर सवाल करने वाले के लिए हकीकी तौर पर मोहताज होना ज़रूरी है। सवाल बराए सवाल दुरुस्त नहीं है जब तक कि साइल वाकई मुस्तहिक ना हो। बिला ज़रूरत सवाल करने से मना फरमाया गया है।
नाज़रीन, इन्फाक की एक और मद व फिर रिकाब गर्दनों का आज़ाद करना है। इसका अमूमी मफ़हूम ग़ुलामों की आज़ादी है, यानी ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद कर दिया जाए और या किसी मुकातब का ज़र मुकातब अदा करके उसे आज़ादी दिलाई जाए। इसकी एक सूरत यह भी है कि किसी मकरूज़ का कर्ज माफ़ करके या उसका कर्ज अदा करके उसकी गर्दन छुड़ाई जाए। चुनांचे इन्फाक के ये तमाम काम नेकी कहलाते हैं। नाज़रीन, तीसरा बड़ा मकसद इबादत है। फिर फरमाया कि नेकी उस शख्स की है जिसने वाक़ामत सलात व आत ज़कात नमाज कायम की और ज़कात अदा की। नमाज के ज़रिए इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ दुरुस्त होता है। फलाह का अहम तरीन ज़रिया नमाज है, जो कि बदनी इबादत है और बड़ी नेकी की बात है। ज़कात माली इबादत है और ये फ़राइज़ में शामिल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना फिल माली हक़्क़न सिवा ज़कात, माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है। सिर्फ ज़कात अदा कर देने से या माल का मुकम्मल हक़ अदा नहीं हो जाता। ये तो फ़र्ज़ है और साहिब निसाब हर साल अदा करता है। जब कोई शख्स निसाब को नहीं पहुँच पाता तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं रहती। अलबत्ता साल के दीगर हुकूक बाकी रहते हैं, जैसा कि फरमाया वाफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, और इनके मालों में साइल और मोहताज का भी हक़ है, यानी इनमें अहलो अयाल कराबतदारों और वालदैन का भी हक़ है। अल्लाह ताला ने नमाज और ज़कात को इकट्ठा बयान फरमाया। कुरान पाक में 32 मरतबा ये ज़िक्र मौजूद है। इससे इन दोनों इबादत की अहमियत का अंदाज़ा होता है। नाज़रीन, चौथा बड़ा मकसद अखलाक है। नेकी का आखिरी मायार अखलाक बताया गया है। वल मौफूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फिल बसाइ वज़र्राइ व हीनल बास, जब वो वादा करते हैं तो पूरा करते हैं और जो सख्ती और तकलीफ़ में सब्र करते हैं, और वो भी जो जहाद में मसरूफ़ होते हैं। ईफ़ाए अहद हुस्न अखलाक और हुस्न माशरत का एक बुनियादी असूल है। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 1 में इरशाद है, औफू बिल उक़ूद, अपने अहद को, अपने वादों को पूरा किया करो। इसी तरह पारा नंबर 15 सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 34 में इरशाद बारी ताला है, व औफू बिल्लाहदी इन्नल अहदा कान मसऊला, लोगों अपने वादा का पास करो, क़यामत के दिन इसकी बास पुरस होगी। वादा खा अल्लाह ताला से हो या उसकी मखलूक से, उसकी वफा लाजिम है। सब्र के बारे में बहस पहले गुजर चुकी है। मैं इस सिलसिले में आपको तफासिल बयान कर चुका हूँ दूसरे पारे के दूसरे रुकू में। चुनांचे फरमाया कि नेकी ये भी है कि हर दुख और तकलीफ़ में सब्र इख्तियार किया जाए। बसा उस तकलीफ़ को कहते हैं जो इंसान पर बैरूनी तौर पर वारद हो, मसलन कोई जानी या माली नुकसान हो जाए, जल्जला या तूफ़ान आ जाए, और ज़र्रा वो तकलीफ़ है जो इंसानी जिस्म के अंदर पैदा हो, जैसे बीमार हो गया, फोड़ा निकला, जिस्म के किसी हिस्सा में दर्द होने लगा, वगैरह वगैरह। अलगर्ज फरमाया कि नेकी इन लोगों की है जो अंदरूनी या बैरूनी तौर पर परेशानी में मुब्तला होकर सब्र करते हैं। वहीन अलबास, और वो लोग नेकी वाले हैं जो कि मैदान जहाद में पहुंचने वाली तकलीफ़ को बखुशी बर्दाश्त कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं, मगर सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। नाज़रीन, फरमाया जिन लोगों में मज़कूरा औसाफ पाए जाएं, नेकी उन्हीं लोगों की है। उलाइकल लज़ीन सदक़ू, यही सच्चे लोग हैं, वो ईमान की दौलत से माला माल हैं, राह खुदा में खर्च करते हैं। इफ़ाए अहद उनका शेवा है और सब्र का दामन नहीं छोड़ते।
اصل نیکی کے کام تو یہی ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور ایسے ہی لوگ متقی ہیں، یعنی یہی لوگ پرہیزگار کہلاتے ہیں۔ متقین کا ذکر بھی میں پہلے سورہ بقرہ کے شروع میں کر چکا ہوں۔ ناظرین، آج کی نشست میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، ما علینا الا البلاغ المبین۔